to shout a minister down when they are answering your questions. Have the patience. मैं किसी की कृपा से यहाँ नहीं आया हूँ भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूँ। प्रधानमंत्री ने मुझे नियुक्त किया है और मेरे डिपार्टमेंट में जो अधिकार उन्हें दिए उसके अधिकार में मैं काम करता हूँ, उसमें मुझे कोई अड़चन नहीं है। Tax our petrol, tax our shirt, tax our footwear, tax our dirt. So since the finance minister has been kind enough to join us, let me capture the present situation in some light verse. Tax our petrol, tax our shirt, tax our footwear, tax our dirt. Tax our mobile, tax our calls, tax our hovels, crumbling walls. Tax our salary, tax our ride, tax our mithai on the side. Tax our sorrow, tax our cheer, tax our future year by year. GST income tax forms pile high, cesses, surcharges make us sigh. Roads with potholes, trains that derail. Where does it go? Is it all a fail? When we ask, is this all in vain? You smile and say, it's for the nation's gain. And if we ask you to try and fix it, you point and say, you will be Vixit. Yet still we pay with a patriotic heart, hoping our cash will play a small part in building a future bright and fair for the nation we love beyond compare. I will remind you, sir, in 2002-2017, 2002 to 2017, Manipur had a Congress government. There was central government till 2014 run by the Congress party. Manipur witnessed 628 months. Sir, Honorable Member Sushmita Dev, Honorable Member, has reasons to be worried about Manipur, she said, and I agree. She comes from an area which is close to Manipur and she knows so much about what's happening there. She raised a lot of questions. I am trying to answer each one of them. If it is an attempt to shut me down, it means that her allegations are not right. If she's got the strength of her conviction, she should hear my answers. And after that, I will sit down, welcome, if you permit her, to ask any number of questions more. But what's the point in shouting me down if there are other members who can also benefit from the answer that I'm giving? She's raised valid questions. I want to answer them. No, they've run out. That's because their tactics is always, don't allow a minister to answer, do all your mudslinging, go away. I know they are watching on the television. मंत्री जी सवाल से पहले इतना डर गए, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं. No. I did not even refer to the CBI. Anyway, sir, उनको बढ़ाना है तो स्कोप बढ़ा दीजिए. He's free to do that. Saket. Sir, over 6,900 cases of corruption have been registered by the CBI, sir. So over 6,900 cases of corruption, a pending trial, cases registered by the CBI. So over 361 corruption cases have been pending since more than 20 years. I'm not yielding, sir. I'm not yielding. I am not yielding, sir. I am not yielding. He needs to learn to listen. I'm not going to yield. I refuse to yield, sir. 1 second. Under the rules, I am allowed to refuse to yield. I'm not going to refuse. I'm not going to yield to him, sir. 1 second. He can wait for... Mr. Gokhale, listen to the chair, please. When there is a jurisdictional issue, Honorable Home Minister. मान्यवर, Honorable Home Minister. इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए. मैं किसी की कृपा से यहाँ नहीं आया हूँ भाई साहब. मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूँ. एक आइडियोलॉजी का विरोध कर यहाँ नहीं घुस गया हूँ मैं. डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज. मान्यवर, ये जो जिक्र कर रहे हैं, इस सदन को गलत तरीके की इंफॉर्मेशन दे रही है. इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए, नंबर ऑफ केस जो वो सीबीआई के कह रहे हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर से चुनावी हिंसा के लिए रजिस्टर किए गए केस है. जो चुनावी हिंसा बंगाल में हुई, ये सारे करप्शन के केस नहीं है मान्यवर. चीर नीर कर रखे. और चुनावी हिंसा किस प्रकार की?
चुनाव में हमारी सीटें ज्यादा आ गई, चुन चुन कर जहां हमारा बहुमत था वो बूथों में हत्या की दी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। जब पीड़ित लोग, कोई एक्शन नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, पीड़ित लोग जब पहुंचे हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई को जांच दिया गया है मान्यवर, हाईकोर्ट के ऑर्डर से दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हाईकोर्ट को भी नहीं मानेंगे। जमींदारी कौन कर रहा है वो अब पूरा देश देखेगा। आप हाईकोर्ट को भी नहीं मानते हो। ये सारे सीबीआई के जो केस है मान्यवर, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रजिस्टर्ड किए गए हैं, और ये कह रहे हैं इनमें परिणाम नहीं आ रहा है। मैं इसलिए परिणाम नहीं आ रहा है, एक भी सीबीआई स्पेशल कोर्ट आज बंगाल में नहीं है, एक भी नहीं बनाई है। गडकरी जी हमेशा कोई नया स्कीम आए तो पूछते, अब इधर इधर क्या हो गया है। तो जो जेन्युइन 4 लाइन की रोड है, जो गुलबर्गा टू बेंगलोर और इधर शोलापुर टू बेंगलोर, फिर बीदर से ये हमारे को कोई कनेक्टिविटी नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट हैदराबाद कर्नाटक रहने की वजह से कोई निजाम के टाइम में उतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई। इसीलिए मैं उनसे नहीं आग्रह भी किया, मीटिंग भी किया, लेकिन वो कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ, और यहाँ तक भी मैं सुना, अगर मैं गलत है तो मैं वापस लेता हूँ अपने शब्द को। इवन नेशनल नंबर रखने के लिए भी, यानी नेशनल हाईवे नंबर 1, 2, 3, 4, 106, 100 नंबर के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाना पड़ता है, ऐसे मुझे इंफॉर्मेशन मिला है। ये गलत है तो ठीक, आप बोलिए इसको। मैं खड़गे साहब को ये बताना चाहता हूं कि कोई नंबर देने की फाइल कहीं प्रधानमंत्री के पास जाती नहीं। प्रधानमंत्री ने मुझे नियुक्त किया है और मेरे डिपार्टमेंट में जो अधिकार उनने दिए उसके अधिकार में मैं काम करता हूं, उसमें मुझे कोई अड़चन नहीं है। दूसरी बात, मैं नम्रतापूर्वक खड़गे साहब को बताना चाहता हूं, केवल उनके कर्नाटक स्टेट में, जब से कर्नाटक स्टेट बना हुआ है उसके बाद में जितना कुछ काम हुआ है, 2014 में हमारी सरकार आने के बाद 10 साल में हमने जितना काम किया है उससे कई गुना ज़्यादा काम हमने किया है। प्रॉब्लम यह है कि एक बार आप मुझे बुला लीजिए, आप स्पेसिफिक बताइए रोड का नाम। हम चेन्नई से लेकर पहली बार दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे चेन्नई को लेकर, चेन्नई से नया हाईवे बन रहा है जिसका काम शुरू हो गया, चेन्नई से अपना सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से चेन्नई, बेंगलोर, मैसूर, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी। 340 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो रहा है। और आपका जो क्षेत्र है वही बिल्कुल आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो क्षेत्र है वो भी उसको कनेक्ट हो रहा है, उसके काम शुरू है। सोलापुर से, बीदर से लेकर बेंगलोर तक, हैदराबाद तक की जो कनेक्टिविटी है, आप मुझे बुला लीजिए, पहले एजेंडा भेज दीजिए, आपके सब जितने प्रोजेक्ट है उतने काम चालू है। हाँ, एक बात जरूर है, मेरे को पॉलिटिकली मत लीजिए, मैक्सिमम प्रॉब्लम कर्नाटका में लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंट क्लियरेंस के फंसे हुए हैं। शिराडी घाट का 10 साल से फंसा हुआ है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी मुझे 2 बार मिलकर गए। आप उनसे भी चर्चा करिए, मुझे पता नहीं आपकी उनसे चर्चा होती या नहीं होती पर आप उनसे भी करिए। वो भी ये कहते हैं कि आज तक हमको जितना नहीं मिला उतना मिला है, और मैं आपको एश्योर करता हूं, आप बहुत हमारे सीनियर नेता हैं, आप एजेंडा बताओ, जो जो एनएच पर आपका काम बताओगे उतना हर काम मैं करके दूंगा। और मेरे पास फिर से दोहरा रहा हूं कि ये सदन में एक भी कोई सदस्य मुझे बताए कि मैं जब 6-6 हजार, 12-12 हजार, 18 हजार करोड़ की बात कर रहा हूं, मैं तो नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, कोई बोल दे कि उनके कोई काम में पैसे कम पड़े और काम अटका हुआ है तो। We all know that all the FIRs has pulled out of this. So why are people pulling out of the Indian economy?
They're pulling out because they don't see the growth happening here. They prefer other economies going on. So what steps is this government going to take to make sure, and who is affected in the in the entire stock market, sir? It's the middle class which is getting hurt. Right now, even if these foreigners have pulled out to such a large extent, it's the Indian economy, the producers and the Indian middle class which is held on to it. There has been a correction of over 10% today in the stock market. So what checks and balances is this government going to do to make sure that this stays steady? So there's another very big intervention which we need to flag here is the gold loan. The gold loan is something which even the RBI has shown concern. Over more than 50, this is first time that has happened in India, that over 50% people are turning towards the gold loan. What is it signaling you? The RBI actually red flagged it. And what's most interesting for me in this whole scenario is we are looking at hope with Shaktikanta Das ji. He used to first manage the monetary policy. Now he's going to be here managing the fiscal policy. So we have a domain expert. So I would really like to flag and ask the Honorable Finance Minister of India that what intervention is he doing, and we would want him to intervene because it's very, very critical for our monetary and fiscal policy right now, more so because RBI is talking about this gold loan. So it's a very, very important point, and it is going to hurt the economy if we don't get our act together on this. So I request the Honorable Finance Minister to be very, very concerned and make sure they take some action and be prepared for this because of the outcomes will hurt the country. आज आप टैक्स कंसेशन, टैक्स रिबेट, मध्यम वर्ग, गरीब सबकी बात करते हैं। कभी आपने देखा कि आपके जमाने में क्या हुआ? मैं कई एक बजट स्पीच लेकर आ रहा हूं। मैंने सोचा कि 10-10 साल के अंतराल पर जो इस देश में बजट स्पीच हुए हैं उनको जरा अध्ययन किया जाए। 1954 में मैं सीडी देशमुख साहब का बजट स्पीच लेकर आया। उन्होंने कहा कि हमने एक एग्रीमेंट किया है वर्ल्ड के साथ कि 86.7% से ज्यादा जो है इनकम टैक्स हम लोगों के ऊपर नहीं दे सकते हैं, इसलिए 40,000 से ऊपर, यह सबको जानने वाली बात है कि 40,000 से ऊपर जिन लोगों को टैक्स लगता है उनको हम 92.5% टैक्स ब्रैकेट में रखते हैं। इस देश में 92.5% टैक्स था 1954 में, 92.5%। 1964 का बजट स्पीच लेकर आ रहा हूं मोरारजी भाई का। 1964 इनकम टैक्स कितना था? 50,000 से ऊपर लोगों को लगभग 94%। और फिर मैं 1973 का श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बजट स्पीच लेकर आया हूं 1973 में। वो कह रही है कि 94% से कम में काम नहीं चलेगा। और फिर मैं बीपी सिंह साहब का बजट स्पीच लेकर आया हूं राजीव गांधी जी के समय 86 में 62.7%। आपने क्या किया गरीबों के साथ, मिडिल क्लास के साथ? बताओ। हम क्या कर रहे हैं? हमने 13 लाख रुपया जो सैलरीड क्लास का है उसको हमने कहा कि आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और यदि एक परिवार में 4 लोग हैं, 4 लोग कमाते हैं, यदि हस्बैंड है, वाइफ है, उसके बच्चे हैं, तो लगभग आप समझिए कि 50 लाख से ऊपर किसी को टैक्स नहीं लगेगा। और कौन ऐसा परिवार है इस देश में? कुछ लोगों को छोड़ दीजिए 2%, 3% को, जिसके यहां की 50 लाख से ज्यादा इनकम है।